Welcome students. So let's learn chemistry in an easy way. See the chapter which we are going to start, that is biomolecules. This chapter is very much interesting because the molecules which we are going to study about, so those molecules are straight away, they are actually related to the living organisms and also to human beings also. So we all are going to take more interest because it's related to the different carbohydrates and the different components of food about which you are already knowing many things about it, but the structure and exactly what different orientation of various groups, so these kind of things in more detailed so in more details in this video we are going to complete that part. So we are going to start with what? The carbohydrates. We will also classify carbohydrates on the different bases, and also after classification we will straight away specifically talk about that glucose, which is very much important, and also this word is not new for us. Glucose, the energy giving, instantly the energy when you require. So everyone actually they are asking you to take this glucose. Okay, so the glucose, how exactly the structure looks like and which functional groups are present in them, and different types of reactions also which made us to know the structure. So all those experiments and all those evidences, you can say, so these things we are going to study. And also the fructose, the different disaccharides also we will talk about, sucrose, and we will also know about this milk, that sugar which we are saying lactose. Okay, so maltose, these disaccharides also we will discuss, and we will start with glucose first. And before this, let's start with carbohydrates. So see what carbohydrates are. Biomolecules see, carbohydrates, in this case the word itself is giving you idea about, see, carb. Okay, carb is related to what? Carbon. Definitely the carbon will be present in these that carbohydrates, and hydrates means what? Water. Okay, so because this carbon and hydrates means the water is present here, that is why formula also we were giving to the carbohydrates, that was what? CXH2O Y. Okay, X and Y may or may not be same. Okay, so suppose X which is equal to Y which is equal to 6. If we are going to use this 6 in this case, then we will get the formula of glucose. Okay, so this formula is that applicable for glucose, fructose, but see, this formula is also working, means this formula is also suiting this CH3COOH, which is not carbohydrate. That is why this definition, or you can say the formula which we have chosen for carbohydrates, that is not fitting here. Why? Because this CH3COOH. So in this case, this C2H4O2. So this is actually see, this also is related to what? C2H2O twice. Okay, so this formula is for acetic acid, and we all are knowing that acetic acid is actually not at all that is near to this carbohydrate. Okay, so this is not a type of carbohydrate, but then also this formula is actually exactly fitting here. Okay, that is why we actually thought about the new definition of carbohydrate, and that appropriate definition for carbohydrates will be, see, in this case I am rubbing this. See, this is carbohydrates are what? They are polyhydroxy
this alcoholic group, okay, polyhydroxy aldehydes or ketones. This statement actually that is more appropriate one, aldehydes or ketones. So in this case what you are observing here, polyhydroxy means the hydroxyl group, the alcoholic group will be present, many of the alcoholic groups, and also this aldehyde or ketonic group also will be present along with the hydroxyl groups. Okay, now see in this case the carbohydrates. Now the clear picture we are having now what carbohydrates are. Okay, let's classify them on different bases. So let's classify them. Classification of carbohydrates. So in this case, classification of carbohydrates. See, first of all, on the basis of number of carbon, or on the basis of number of carbon or type of functional group, that is aldehydes or ketones. Okay, which aldehydes or ketones, which one is present in the carbohydrate. On the basis of that we are going to give them names like, see, suppose the glucose, which is the commonest example, the see, this is very nice and everyone actually knows about glucose. So we are quoting this example only here. See, so in this case C6H12O6, glucose is having how many carbons? 6. Okay, so we are going to call this as hexose. Okay, because the aldehyde group is present in glucose, so we are going to say that these are aldohexoses. Okay, aldohexose to glucose we are going to say this. And also the chemical formula of fructose also will remain the same. The difference is what? See, aldohexose, aldehyde group is present in glucose, and in fructose ketonic group is present. That is why we are going to call them as ketohexose. Okay, so this is for fructose. So we can also classify them like this. This is glucose. Okay, so to glucose we will say this aldo, this hexose, and also we are also giving on the basis of the optical isomerism. Okay, so on the basis of optical activity we can also call them dextrose. Okay, dextrose. So this is dextrose means the substance with substance we are considering glucose. So glucose is dextrorotatory. That is why we can also call glucose as dextrose. Okay, dextrose. Now, if 5 carbons will be present in the carbohydrate, then we will call them as pentose. And aldo, keto, this will be in accord with the functional group present in the carbohydrate. Okay, so this was also very much simple. I hope you understood. See, this on this basis also we can classify the carbohydrates. Now we can also see on, I hope you understood this part. Now next is what? On the basis of, see, the second part is on the basis of products obtained from hydrolysis. Okay, so after hydrolysis of carbohydrates, suppose we are actually talking about the first one is what? Monosaccharide. Okay, so in this case, if the substance is not going to that
if the substance is not going to get divided, or you can say this monosaccharides are those carbohydrates which cannot be further divided after hydrolysis. Okay, so these are actually the these are the simplest the hydrocarbon the simplest this carbohydrate which cannot be further divided, means more monomeric units cannot be produced. This is the most simplest one, this is consisting of one monomeric unit. Okay, repeat, in this case only one that unit, suppose with the help of example we will understand. Suppose this is glucose. Okay, so glucose is C6H12O6. Okay, so this cannot be further divided into different fragments. It cannot be divided more. So this will be called as monosaccharide. More example of this kind will be glucose, fructose, galactose. Okay, galactose. So these are what the different types of monosaccharides. Okay, examples of monosaccharides. Now next is what? Oligosaccharides. So oligosaccharides means oligosaccharides. So the carbohydrates which are going to give 2 or more than 2. Okay, 2 to 10 monomeric units after hydrolysis. See, if the carbohydrates are subjected to hydrolysis, then 2 or more than 2 up to 10 monomeric units, if that will be produced or that will be obtained, then that particular carbohydrate will be known as oligosaccharides. Okay, so those carbohydrates will come under this category, oligosaccharides. Okay, now after this oligosaccharides more than 10, okay, if the products of hydrolysis, if they are more than 10 monomeric units, then we will say that those type of polysaccharides. So we will call those type of carbohydrates as polysaccharides. Okay, so with the help of examples I will tell you what is the difference here. See, oligosaccharides, only one monomeric unit that will be produced in case of monosaccharide. Okay, that cannot be further divided. The first one, monosaccharide. Oligosaccharides will actually give you 2 to 10 monomeric units. Okay, so after hydrolysis, means when oligosaccharides are subjected to hydrolysis, then they are going to furnish what? This 2 or 2 to 10 monomeric units you will get. So they are with the help of example, let me tell you this. Suppose disaccharide sucrose we are saying. Okay, so sucrose, this sucrose C12H22O11, if it is subjected to this hydrolysis, then we will get 2 monomeric unit. They are 2C6H12O6 I am writing here. C6H12O6, this is the chemical formula for glucose also and fructose also. Okay, so glucose and fructose, these 2 monomeric units we are going to get after the hydrolysis of this sucrose. Okay, and also this maltose, lactose, so these are also what? The disaccharides. So more more details that also we are going to complete in this video only. Okay, so after this classification we will also classify them on the basis of sugar and non-sugar, like that. The nature, sugar means sweetness will be there with what? Monosaccharides and oligosaccharides, they are sweet in nature. Sweetness will be there with monosaccharides. See, they are sugars. These are what? Sugars. And non-sugars, in that category this polysaccharides will fall. Non-sugar. Okay, so non-sugar means the taste will not be sweet at all. Okay, so example of polysaccharide will be this starch, cellulose, and glycogen.
Okay, glycogen we are also call them as animal starch because that is present in animals. Glycogen. So in human beings also this glycogen is present. Glycogen actually this is see in adipose tissues, means under this skin we are having that fatty layer. So glycogen is present in them, and whenever this body actually needs energy, and so in that case also, suppose during fastings also, when you are actually not means intake of food, suppose you are stopping, so the requirement, means energy requirement, that will be compensated by this glycogen only. Okay, the glycogen are helping us, and they are only energy they are helping us to provide this energy which is necessary for the normal functioning of different body parts, every body part, and for normal functioning the energy is required. So this energy requirement, that will be fulfilled by this glycogen. Okay, so in this case the polysaccharides, that will in that case polysaccharides, they are what the different examples are starch, cellulose. Cellulose is present in the large number of molecules, means they are actually in more large amount in case of plants. Okay, so this is present in plants. Glycogen is present in animals. Okay, and see, this was also sugars, non-sugars, like that we classified the carbohydrates into these categories. Now let's start with one by one the monomeric units. We will start with first glucose. Okay, the structure of glucose was not known, and so the different experiments which made us to see that helped us to know the structure of glucose. So they are what, and the functional group also which exactly is present in glucose. So all these knowledge or all this information we got from different experiments. So let's understand the experiments one by one. So let's start first. See here. First, reaction with HI. Okay, now the glucose. Okay, so glucose, this C6H12O6. Okay, if it is reacting with HI and also heated, then we are going to get CH3, CH2 4 times, and CH3. This is what? Normal hexane. Okay, so normal hexane, the formation of normal hexane, that helped us to know that the branching is not present in this glucose. Okay, so we concluded. So what conclusion we drew? यहाँ से क्या पता चल रहा है, देख लीजिए, अगर ये रिएक्ट कर रहा है HI से हीट करने पर, तो हमें मिल क्या रहा है, ये नॉर्मल हेक्सेन. ठीक है, तो यानी कि हमें क्या पता चल रहा है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक्चुअली ग्लूकोज इज लीनियर, ब्रांचिंग इज नॉट ऑब्जर्व इन केस ऑफ ग्लूकोज. तो पहला चीज हमें क्या समझ में आया कि ये लीनियर है, ब्रांचिंग इसमें प्रेजेंट नहीं है, तभी हमें क्या मिला, नॉर्मल हेक्सेन. नाउ नेक्स्ट, reaction of glucose with hydroxylamine. Okay, NH2OH. Hydroxylamine, this actually reacts with what? Carbonyl group. Okay, कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करने पे देख लीजिए क्या होगा. मान लीजिए आपका दिस इज CHOH 4 times and this is CH2OH. This is what? See, 4, 5, 6 carbons are present. This is what? Glucose. Okay. Glucose में देख लीजिए यहाँ
ग्लूकोज में दिस एल्डिहाइड ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट, मतलब एल्डिहाइड विद कीटोन में। यहाँ पर आपका जो C डबल बॉन्ड O है तो कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट। ये हमें पता कैसे चला? व्हेन ग्लूकोज एक्चुअली व्हेन वी मेड देम टू रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन, देख लीजिए यहाँ से अगर ये NH2OH के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से ये जो पार्ट है डबल बॉन्ड O के साथ, कार्बन इज मेकिंग डबल बॉन्ड विद O, so this in case of NH2OH what will happen, this nitrogen will replace this oxygen। यहाँ पर नाइट्रोजन क्या करेगा? ऑक्सीजन को हटा के डबल बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ, तो मिल क्या जाएगा आपको? NOH, ठीक है। और बाकी एज इट इज सब कुछ CHOH 4 times and then CH2OH, ओके। तो ये जो मिला हमें कंपाउंड, ओके, तो दिस कंपाउंड इज नोन एज C because this is called as oxime, okay, this is called as oxime, so this is glucoxime, what we are going to call this as glucoxime, okay। So glucoxime we got and this actually helped us to know that carbonyl group is present in this glucose। ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, वो हमें पता कैसे चला? देख लीजिए बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ और ऑक्साइन बना लेगा। क्योंकि ये ग्लूकोक्साइन बन रहा है तो हमें पता चला कि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप तो प्रेजेंट होगा ही, ठीक है। ये एक पार्ट हुआ। नेक्स्ट, आई होप यू नोटेड डाउन दिस, यू कैन पॉज इट एंड यू कैन सी, यू कैन राइट डाउन आल्सो, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। देख लीजिए, नेक्स्ट आप देख लीजिए, पहले हमें पता चला कि वो लीनियर है ग्लूकोज, उसके बाद फिर हमने देखा कि दिस कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट। नाउ इन केस ऑफ सी द थर्ड रिएक्शन, ओके, सो oxidation, so this reaction with bromine water, okay, bromine water। यहाँ देख लीजिए क्या हो रहा है। सबसे पहले आपका एक तो इसको अच्छे से समझ लीजिए बनाते कैसे हैं ये पार्ट। देख लीजिए, ये फर्स्ट कार्बन जिसमें कि एल्डिहाइड ग्रुप है, सेकेंड कार्बन, यहाँ पर आपका जो सेकेंड कार्बन है वहाँ पे OH वी आर राइटिंग राइट हैंड साइड। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये डायरेक्शन ऑल्सो मैटर्स, ओके। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप वी आर राइटिंग हियर ऑन राइट हैंड साइड द थर्ड कार्बन, ध्यान रखिएगा, थर्ड कार्बन में वी आर राइटिंग लाइक दिस। लेफ्ट हैंड साइड में वी आर राइटिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर H, फिर आपका यहाँ पर H और ये सेम एज इट इज OH, यहाँ भी फिर से OH, ओके, और C लास्ट वाला CH2OH, like this we are writing, okay, this is called as Fischer projection formula of glucose, okay, so this is called as what? Fischer projection formula. I hope you understood, okay। Now in this case, okay, so reaction of this bromine water, so if it is subjected to this bromine water, okay, तो मिल क्या जाएगा? देख लीजिए आपका ये जो पार्ट है, ये पार्ट CHO, तो ये अभी हमें पता चला कि यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है। ये अभी हमने जो रिएक्शन देखा हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, तो हमें पता चला कि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप तो है। कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोनिक है कि एल्डिहाइडिक है, उसको चेक करने के लिए ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन नाउ वी आर सीइंग हियर। तो ये जो पार्ट है, अब यहाँ से ये क्या है, हमें मिल जा रहा है ये COOH, CHOH, ये एज इट इज वैसे ही रह जा रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा। देख लीजिए, ये पूरा ये CHOH को आई रोट लाइक दिस, CHOH 4 times एंड दिस CH2OH, ओके। तो ये जो पार्ट है ये एज इट इज रह जा रहा है, इसको हम क्या नाम देंगे? एक एसिड ग्रुप आ गया, तो वी आर गोइंग टू कॉल दिस एज ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। ग्लूकोनिक एसिड का बनना यहाँ पे ये बताता है कि दिस ब्रोमीन वाटर इज ऑक्सीडाइजिंग दिस एल्डिहाइडिक ग्रुप, ओके। एल्डिहाइडिक ग्रुप ये जो है ये ऑक्सीडाइज होके बन जा रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, और ये हमारा ग्लूकोनिक एसिड बन गया। तो हमें पता क्या चला? देख लीजिए, हमें ये पता चल गया कि जो कार्बोनिल ग्रुप था वो एल्डिहाइड था, ठीक है। नाउ
Next, with see, we are having what this aldehyde group that is proved कि aldehyde group यहाँ पर है. बाकी देख लीजिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप. अब इसका प्रेजेंस के लिए so which experiment we chose here? If this glucose is subjected to fourth reaction, reaction of glucose with acetic anhydride. Acetic anhydride है क्या? चेक कीजिए. CH3COOH, CH3COOH. Suppose two molecules of CH3COOH, दो molecules आपने एसिटिक एसिड के ले लिए और उसमें से अगर यहाँ से आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें, देख लीजिए क्या बचेगा बेटा. यहाँ से CH3COO, इसे CH3CO. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? CH3C_O, CH3C_O एंड C. 3 ऑक्सीजन वी आर हैविंग हियर. ये OH हमारा निकल गया, ये H निकला, एक यहाँ से ऑक्सीजन और 2 यहाँ से, 3 है. चेक कीजिए. तो यहाँ पर आपका 1 और 2 और तीसरा इस तरह से that will be bonded like this. Okay, ये अच्छे से क्लियर आपको दिख रहा होगा. ठीक है. तो इस तरह से आपका ये जो है इसे हम कहेंगे दिस इज व्हाट? एसिडिक एनहाइड्राइड. ओके, दिस इज एसिडिक एनहाइड्राइड. तो अब ये किससे रिएक्ट कर रहा है? ग्लूकोज के साथ. चेक कीजिए यहाँ. ओके, सो हियर योर ग्लूकोज इज रिएक्टिंग विद दिस. सो वी आर राइटिंग लाइक दिस CH4 टाइम्स CH2OH. ठीक है. तो अब ये जो है ये रिएक्ट कर रहा है आपका एसिडिक एनहाइड्राइड से. देख लीजिए आपको क्या मिलेगा यहाँ पे. फर्स्ट ये जो आपका एल्डिहाइडिक पार्ट है वो एज इट इज रहने दो इसको. नथिंग इज गोइंग टू चेंज इन दिस केस. ये आपका ऐसे दिस CHO विल रिमेन एज इट इज. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? यहाँ पे एसिटेट. सी दिस एसिटेट आयन इज दिस वन, दिस पार्ट. सो दिस पार्ट विल गेट अटैच्ड टू ईच ऑफ द C. In place of hydroxyl ion, the acetate ion will get attached. Okay, so hydroxyl ion, how many hydroxyl ions you are having here? 5. तो 5 आपका acetate ion यहाँ जुड़ जाएगा. So glucose यहाँ पे penta acetate, this will be formed. तो देख लीजिए कैसे बनेगा. Shall I write here? यहाँ देख लीजिए. ये आपका CHO ऑलरेडी ऐसे का ऐसे ही है. यहाँ से देख लीजिए ये आपका पार्ट H, यहाँ आपका OH की जगह देख लीजिए, OH की जगह आपका आ जाएगा दिस O, देन दिस C एंड दिस CH3. ओके, हियर यू आर हैविंग दिस O, दिस C एंड दिस CH3. देख लीजिए इस तरह से दिख रहा है आपको. देख लीजिए बेटा यहाँ पे क्या है आपका CH3COO with this. ओके, और यहाँ से आपका ये देख लीजिए ये H as it is. फिर यहाँ इस तरह why I wrote here because the OH थर्ड में आप हमेशा ध्यान रखिए कार्बन थर्ड जो है C3, ये फर्स्ट कार्बन जो कि आपका एल्डिहाइड ग्रुप से अटैच है वो फर्स्ट नंबर 1 कार्बन है, 2 और 3. तो C3 जो है उसमें थोड़ा सा ओरिएंटेशन इज डिफरेंट. द OH इज लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है? द कार्बन एक्चुअली लाइक दिस, ये इस तरह से है. ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर आपका हम आगे जो हमारे पास आ रहा है और हमसे दूर जो जा रहा है उसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ये लेफ्ट और राइट. ठीक है. तो ये जो पार्ट है हमारी तरफ जो मतलब पीछे जो जा रहा है उसको राइट हैंड साइड, और हमारे पास जो आ रहा है उसको लेफ्ट हैंड साइड से दिखा रहे हैं. तो इस तरह से इसका ओरिएंटेशन है. यहाँ पे आप ध्यान रखिए कार्बन नंबर 2, 4, 5, 6 सब में ये पार्ट आपका राइट हैंड साइड में, एक्सेप्ट दिस थर्ड कार्बन. थर्ड कार्बन में द ओरिएंटेशन इन दिस केस थर्ड कार्बन इज
कैरिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए ये पार्ट आपका O, दिस COCH3, ये इस तरह से, फिर एक और O COCH3, एसिटेट आयन 1 2 3 4 and 1 more। Okay, so this is CH2, then O, this C double bond O CH3, इस तरह से। तो you got what? I hope you all can see this. This is what? The glucose pentacetate। तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ देख लीजिएगा, वन क्वेश्चन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इज गिवन कि यहाँ पे पेंटा एसीटेट ये जो बन गया है आपका, यहाँ पर अब ये हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अब ये रिएक्शन नहीं देगा। हमने फर्स्ट उसमें जब कार्बोनिल ग्रुप है ये हमने कंफर्म कैसे किया था आपका हाइड्रोक्सिल अमीन के रिएक्शन के साथ, लेकिन अब ये हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो पार्ट है ये आपका ये जो एसीटेट ये वाला आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ से आपको अभी इसके बाद आपको यहाँ से डिस्कस करेंगे हम लोग कि वो जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री नहीं है। ठीक है, तो फ्री नहीं है इसीलिए अब वो ये हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ मतलब जो ऑक्साइम बन रहा था अब नहीं होगा, अब ऑक्साइम नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये ध्यान दे दीजिएगा, ये पार्ट आपका पेंटा एसीटेट बनने का यहाँ पर इससे निष्कर्ष निकलता है कि आपके इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 5 अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है जो कि एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है, एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ ये एक्चुअली ये वाला जो पार्ट अपने 10th क्लास में भी पढ़ा है एस्टेरिफिकेशन, है ना, उसमें हमने क्या देखा था कि व्हेन दिस एसिडिक एसिड व्हेन दैट इज रिएक्टिंग विद अल्कोहल दैट ईस्टर विल बी फॉर्म। तो सेम हियर आल्सो द ईस्टर इज you all can see the ester is being formed in case of this pentacetate। okay, देख लीजिए ये भी एक ईस्टर बन जा रहा है, दिस इज CH3COO, then this alkyl group is attached, मतलब ये आपका यहाँ से भी देख लीजिए ये जो है पार्ट CH3COO and this CH फिर इसके साथ जुड़ गया आपका, तो ये जो पार्ट है आपका ये एक ईस्टर, तो यहाँ पे भी ईस्टर बन जा रहा है। ठीक है, तो ये सारा आपका आपको बता रहा है कि अल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और उनकी संख्या कितनी है 5, ये हमें समझ में आ गया। अब विच टाइप ऑफ दिस अल्कोहल इज प्रेजेंट हियर, ओके, प्राइमरी है सेकेंडरी है, ये हमें चेक करने के लिए अब हम रिएक्शन करवाएंगे इसका, ये लिख दिया होगा आपने, देखिए अब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे। तो रिएक्शन ऑफ दिस ग्लूकोज विथ HNO3, दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यू ऑल आर नोइंग, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देख लीजिए अब क्या होगा, दिस CHO, दिस CHOH, okay, 4 times, and then this CH2OH। okay, so the glucose in this case, see here you all can check that this carbon is associated with what, one of the carbon I am showing you like this, देख लीजिए यहाँ पे ये जो कार्बन है बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो कार्बन है ये जुड़ा है एक यहाँ पर ये CHO से, यहाँ पर आपका जुड़ा है ये OH के साथ, यहाँ पर जुड़ा है हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पर ये जो कार्बन है दिस कार्बन ऑल्सो इज कंटेनिंग व्हाट, यहाँ पे 3rd कार्बन OH यहाँ, ये इस तरह से। तो देख लीजिए ऑल द 4 एटम्स विच आर एसोसिएटेड विद दिस कार्बन, ओके, all are different, you all can check, see this side also, this the carbon is making bond with this CHO, okay, so this is also a different group, this hydrogen also is different, this OH also is a different that group, and here this part also is different, okay, और ये वाला जो है ये भी आपका डिफरेंट एटम से ये यहाँ पे भी बॉन्डेड है, दिस कार्बन ऑल्सो इज बॉन्डेड विद व्हाट द डिफरेंट, यू ऑल कैन सी राइट द ओपन स्ट्रक्चर आई एम शोइंग यू हियर ऑल्सो, देख लीजिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे ये, और दिस इज व्हाट CH2OH। अब देख लीजिए
ये वाला जो पार्ट है मीन्स दिस कार्बन इज एसोसिएटेड विद व्हाट, यहाँ ये जो नंबर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 कार्बन इस तरफ, एक एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ ये कार्बन इससे जुड़ा है, और इधर भी देख लीजिए ये पूरा पार्ट जो है वो भी डिफरेंट आपका है, और ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट। तो 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, so this carbon is known as chiral carbon. This so how many chiral carbons we are having? 1 2 3 and 4. So what we are going to call this kind of carbon as chiral carbon. क्यों कह रहे हैं chiral carbon? क्योंकि ये चारों ही, ये यहाँ पर ये जो कार्बन है ये चारों अलग अलग ग्रुप से जुड़े हैं, ठीक। Now in this case this carbon is making double bond with O. ये अलग अलग कार्बन से तो जुड़ा नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड अगर वो O से बना रहा है तो यहाँ पे कायरलिटी हो ही नहीं सकती। 4 अलग अलग एटम से जुड़ना ये इसका नेसेसरी इसका डिमांड है, वो तो पूरा हो नहीं रहा, यानी कि ये आपका कायरल कार्बन है नहीं। उसके बाद आप चेक कीजिए, दिस ऑल्सो इज नॉट कायरल कार्बन। वाई? बिकॉज 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, मतलब 2 एक ही जैसे एटम से जुड़ा हुआ ये कार्बन भी कायरल कार्बन तो है नहीं। तो कायरल कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, ठीक है। तो कायरल कार्बन यू आर हैविंग हियर, ध्यान से देखिएगा, बिकॉज मेनी ऑफ द टर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस कायरल कार्बन ओनली वी आर एक्चुअली गोइंग टू डिफाइन देम, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, अब ये जो पार्ट है आपका, तो दिस हाइड्रोक्सिल पार्ट, ये इसका यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। दिस ग्लूकोज इज रिएक्टिंग विद दिस HNO3, और हमें मिल क्या रहा है, यहाँ से हमें ये मिल जाएगा COOH, और यहाँ पे CHOH, और यहाँ पे ये है आपका CH2OH, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए, ये in this case only one this carbon is associated with only one carbon, एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। और ये देख लीजिए, क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन और ये all 4 carbons are actually associated with 2 carbons, that is why they all are what, they are secondary carbons, ठीक है। कायरल कार्बन भी हैं, और ये क्या है, सेकेंडरी कार्बन है, तो सेकेंडरी अल्कोहल है ना, अल्कोहल। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल, दे आर एक्चुअली नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद, दे आर नॉट गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज्ड विद दिस HNO3, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो पार्ट है आपका, ये HNO3 के साथ अब ऑक्सीडेशन नहीं देगा, और यहाँ पर इसीलिए ये CHOH विल रिमेन एज इट इज, एंड here also this primary alcohol will be changed into this COOH. देख लीजिए, 2 है COOH, यहाँ भी COOH, so we are going to call this kind of compound as saccharic acid. This is what, saccharic acid, है ना। 2 का यहाँ पर देख लीजिए, CHO, this aldehyde group also is oxidized to carboxylic group, और यहाँ पे CH2OH, यानी कि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो भी आपका चेंज होके कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो रहा है, और इस तरह से आपका ये कंपाउंड जो बना जिसका नाम सैक्रिक एसिड है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से हमें हेल्प करता है ये समझने में कि हमारे पास एक ही प्राइमरी अल्कोहल है जो कि ऑक्सीडाइज हो चुका है, ठीक है। और ये CHO तो वो ऑक्सीडाइज होगा ही, तो ये 2 ऑक्सीडाइज होकर सैक्रिक एसिड का निर्माण करते हैं, ठीक। So this was all about the type of alcohol also we now we actually we came to know that one primary alcohol was also present and the rest of the alcohols were secondary alcohols. 5 alcohols हमारे पास हैं, ये हमें पता चला एसिडिक एनहाइड्राइड के रिएक्शन के साथ पेंटा एसिटेट का बनना, ये प्रमाण है कि 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। वो अल्कोहलिक ग्रुप प्राइमरी है या सेकेंडरी है, उसके लिए हमने ये रिएक्शन करवाया ग्लूकोज का HNO3 के साथ, जो कि हमें दे रहा है सैक्रिक एसिड, जो कि हमें यहाँ से हमें समझ में आ रहा है, यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 1 प्राइमरी और 4 सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट थे ग्लूकोज में। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट सी ऑल द डिफरेंट ग्रुप्स, ये हमें पता चल गया, लीनियर है ये पता चल गया। अब एक और चीज देख लीजिए, यहाँ पर सी
आपने देखा ये वाला जो पार्ट है, जैसे मान लीजिए कि ये है आपका ये CHO ग्रुप, व्हेन दिस CHO, ये जो कार्बोनिल ग्रुप, ये जो आपका एक रिएक्शन है यहाँ से ये ROH के साथ, अल्कोहल के साथ अगर ये रिएक्ट कर रहा है, मतलब एल्डिहाइड एक ग्रुप अगर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये आपको देगा हेमी एसिटल। जैसे ये देख लीजिए डबल बॉन्ड इट इज मेकिंग विद दिस ऑक्सीजन, है ना, और ये आपका जुड़ा हुआ है पेरेंट चेन से। नाउ इन दिस केस सपोज दिस पेरेंट चेन RCHO, नाउ इन दिस केस दिस डबल बॉन्ड इज गोइंग टू break, and in see this double bond is breaking, and with the cleavage of this bond this carbon will acquire which charge। देख लीजिए ये अगर बॉन्ड टूटा है तो ऑक्सीजन के ऊपर ये नेगेटिव, यहाँ पर आपके पास चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, दिस कार्बन विल एक्वायर, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ आ गया नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है आपका देख लीजिए ये ROH, ओके, सो इन दिस केस ऑल्सो दिस क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड, ओके, इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये जो पार्ट आपका यहाँ से टूट रहा है तो ये आपका OH नेगेटिव और ये पॉजिटिव, सो दिस R विल गेट अटैच टू दिस O एंड दिस OH विल गेट अटैच टू दिस कार्बन। देख लीजिए इस तरह से, तो इससे जो बनने वाला यहाँ पर देख लीजिए यहाँ जो बन रहा है एक तो ये OR और ये है आपका OH, इस तरह से ये जो कंपाउंड बना इसे हम कहेंगे दिस इज हेमी एसिटल, ओके, हेमी एसिटल। और वही अगर आपका ये कीटोनिक ग्रुप होता, अगर यहाँ H की जगह अगर आपका R' अगर यहाँ पे इस तरह से होता तो ये हेमी कीटल कहलाता, ठीक है, तो हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल। So this kind of compound we are going to get when this aldehydic or ketonic group is reacting with alcoholic part. Okay. So I hope you understood this part. अब यहाँ पे देख लीजिए, अब हम इसी को रिलेट करेंगे या साइक्लाइजेशन देख लेंगे अब हम ये ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज में ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप एंड दिस CHOH, यहाँ पर आपका OH, यहाँ H, यहाँ देख लीजिए थर्ड, हमेशा ध्यान रखिएगा दिस थर्ड कार्बन, ओके, दिस थर्ड कार्बन इज हैविंग द डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ OH का डिफरेंट ओरिएंटेशन, यहाँ देख लीजिए ये आपका OH यहाँ ये इस तरह से, और बार बार ये बनाते बनाते अभी तक याद हो गया होगा, ये इजी पार्ट है, देख लीजिए यहाँ 1 2 3 4 5 वन मोर, तो दिस लास्ट पार्ट वी आर एक्चुअली गोइंग टू राइट CH2OH। इस तरह से हम ग्लूकोज बनाएंगे। ग्लूकोज दिस ये यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था ये हेमी एसिटल, तो यहाँ से दिस डबल बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक हियर एंड हियर द पॉजिटिव चार्ज इज एक्वायर्ड बाय दिस कार्बन, और यहाँ से देख लीजिए ये वाला मतलब कार्बन नंबर 5 दिस कार्बन, ओके, सो इन दिस केस this oxygen is actually having what oxygen is having this H को इस तरह लिख लीजिए, the lone pair of electrons are present on this oxygen, और ये जो lone pair है इसकी मदद से यहाँ से ये बना लेगा ये सॉरी यहाँ से ये बना लेगा आपका ये ऑक्सीजन, यहाँ आपका इस तरह से हेमी एसिटल बन जाएगा, ये पार्ट आपका ये ऑक्सीजन से ये जुड़ के देख लीजिए यहाँ पे ये जो पार्ट है आपका H, ये वाला H ये यहाँ आके जुड़ जाएगा और ये कार्बन के साथ ये वाला ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस देखिए ऐसा साइक्लाइजेशन विल टेक प्लेस। तो यहाँ पे ये बन गया आपका इसके साथ अभी आपको बताया था, यहाँ देख लीजिए ये OR और ये OH, तो यहाँ से आपका ये पार्ट आपका ये OH और ये R पार्ट ये है, ये वाला जो पार्ट है ये आपका R पार्ट, और ये किससे जुड़ा है O से। तो इस तरह से आपका जो ग्लूकोज बना इसको हम यहाँ से ये साइक्लाइजेशन जो ये हो चुका है, तो यही साइक्लिक स्ट्रक्चर ही आपका असली स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ पर
ये जो पार्ट है आपका, अब हम इसको एक और तरीका है दिखाने का, हावर्थ दैट फॉर्मूला, हावर्थ ने फॉर्मूला, ये इसको रब करती हूँ, आपको क्लियर समझ में आएगा। लेट मी क्लीन दिस। देखिए यहाँ पर ये आपका दिस HOH, ओके, एंड दिस is bonded with CH2OH। बहुत क्लियरली यहाँ से देख पाएगा आपको। ये देख लीजिए, ये कार्बन कार्बन कार्बन, देख लीजिए इस तरह से, दिस OH H, थर्ड कार्बन विल हैव दिस HOH। देख लीजिए यहाँ थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन विल ऑल्सो हैव दिस, ओके। फिफ्थ कार्बन देख लीजिए यहाँ पे ये O, और ये इस तरह से आपका बॉन्डिंग, और यहाँ ये OH। अब ये जो पार्ट है, ये जो OH है, ये राइट हैंड साइड में, ठीक है, ये राइट हैंड साइड में है, तो एक और आइसोमर बनेगा इसका, आइसोमर, या इसको हम कहेंगे एनोमर। इस टाइप के आइसोमर को हम कहेंगे एनोमर। तो क्या है डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पे राइट हैंड साइड में OH और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में OH, ओके, और बाकी सारे एज इट इज रहेगा। थर्ड कार्बन विल हैव OH दिस साइड, यहाँ पे फोर्थ ये OH, यहाँ पे H, ये पार्ट आपका OH, ये आपका H, फिर CH2OH। तो यहाँ देख लीजिए आपको दो, यहाँ पर OH दिस साइड एंड सॉरी, ये आपका ऐसे, ये ऑक्सीजन और ये इस, ठीक है। तो यहाँ ये जो पार्ट है, ये दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, ये दोनों, ये इनको हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे अल्फा ग्लूकोज, ओके, अल्फा ग्लूकोज, और ये होगा बीटा ग्लूकोज, ठीक है, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। अल्फा एंड बीटा दे आर एक्चुअली द एनोमर्स ऑफ ईच अदर। एनोमर्स यानी ये जो फर्स्ट कार्बन, मतलब जो कार्बोनिल कार्बन में आपने देखा कि एक ये जो OH बन रहा है, एक तरफ अगर वो राइट हैंड साइड में अटैच्ड है, कार्बन के राइट हैंड साइड में अटैच्ड है, तो वी सी राइट हैंड साइड में है, तो ये एक एनोमर हुआ, और दूसरा एनोमर है लेफ्ट हैंड साइड में अगर ये OH लिया। ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज चेंजिंग हियर, and on the basis of that we are actually going to say this kind of isomer as एनोमर, ओके। आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में वन मार्क्स क्वेश्चन ऐसे एनोमर, एपीमर इस तरह से भी आ सकता है, और एनोमर समझ में आ गया। अभी एपीमर क्या है वो भी देख लीजिए। सी दिस ग्लूकोज, ओके, दिस ग्लूकोज, if I write here will you be able to see this? Okay, see in this case suppose your see galactose means this fourth number of, in this case 1 2 3 4, this fourth chiral carbon, I told you chirality also, I explained you nicely। चार आपको बताया मैंने कि चार chiral कार्बन है, ये चौथा जो chiral कार्बन है, अगर उसका यहाँ पर मतलब पोजीशन अगर यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले तो ये समझ में आया आपको अल्फा बीटा ग्लूकोज क्या है, एनोमर्स ऑफ ईच अदर, दे आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। लेट मी रब दिस, देन ओनली आई बी एबल टू एक्सप्लेन यू व्हाट दिस एपीमर्स आर, ओके। तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको। अब देख लीजिए इनको, एनोमर्स मतलब ये जो फर्स्ट मतलब कार्बोनिल कार्बन में ये जो चेंज आया, देख लीजिएगा कार्बोनिल कार्बन था फर्स्ट वाला कार्बन, उसमें आपका OH ग्रुप, ये ओरिएंटेशन, ये जो चेंज है, इस चेंज की वजह से इसको हमने नाम दिया है एनोमर्स, दे आर एनोमर्स। ये पूरा क्लियर हो गया होगा एनोमर्स। चलिए अब आप देख लीजिए एपीमर्स क्या है। एपीमर्स यानी जैसे मान लीजिए कि आपका दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ओके, इसको हम कहेंगे, इसको बहुत अच्छे से ढंग से समझिएगा, ये है आपका हावर्थ स्ट्रक्चर, हावर्थ स्ट्रक्चर। तो हम सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की। सबसे पहले ग्लूकोज को ढंग से बनाना देख लीजिए, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये ऑक्सीजन बीच में, ये देख लीजिए, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड एज पायरेनोज स्ट्रक्चर, पायरेनोज स्ट्रक्चर कहते हैं इसे।
ठीक है। ये पायरेनोज, ये वाला जो इस तरह से जो बनाया हुआ है, बेंजीन रिंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीजन है, बीच में ब्रेक है, कार्बन कार्बन की वजह से ये आपका साइक्लोहेक्सेन या बेंजीन आप रिजेंबल कर सकता है, लेकिन ये ना तो डबल बॉन्ड है यहाँ और ना ही ये कंटिन्यूस कार्बन चेन प्रेजेंट है यहाँ। तो यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन है, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम कहेंगे पायरेनोज स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इन दिस केस द फर्स्ट कार्बन, ओके, सो फर्स्ट कार्बन विल हैव व्हाट, यहाँ पर ये आपका जो पार्ट है यहाँ पे होगा OH। अगर मैं ऊपर लिखूँ, ध्यान रखिएगा, अगर मैं ऊपर लिखूँ तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में मैंने जो लेफ्ट में लिखा था OH, वो उसको हम हार्वर्ड स्ट्रक्चर में ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला पार्ट अगर हम ऊपर लिख रहे हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड को डिनोट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको नीचे लिखें हम OH, और H को हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि अगर नीचे OH है तो ऊपर H है, तो उसे हमें ज़रूरत नहीं दिखाने की। तो पहले पार्ट में अगर हमने ये लिखा है OH नीचे की ओर, ठीक है, यानी राइट हैंड साइड में, तो ये वाला जो पार्ट है, नेक्स्ट सेकेंड वाला जो है उसमें भी OH क्या है, दैट ऑल्सो विल कम हियर, OH नीचे है। थर्ड वाला जो पार्ट है, आपको पता है कि थर्ड कार्बन, कार्बन नंबर 3 जो है उसमें OH होगा ऊपर, ठीक है, और यहाँ नीचे H। देन फोर्थ कार्बन, ओके, सो फोर्थ कार्बन ऑल्सो विल हैव OH हियर, नीचे लिख रहे हैं हम। और फिफ्थ वाला दैट कार्बन इन दिस केस CH2OH वी आर राइटिंग लाइक दिस। और ये वाला जो पार्ट है ये भी हमारा, ये इस कार्बन पे भी हमारा आ जाएगा नीचे OH, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो पार्ट है, सॉरी, ये आपका देख लीजिए, ये OH 1 2 3 4 5, तो 5 OH ग्रुप वी अरेंज लाइक दिस। तो ये जो पार्ट है यहाँ पर आप इसमें देख लीजिए, यहाँ ये जो आपने लिखा है, ठीक है, ये नीचे बनाया है तो ये होगा आपका अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। और एक आपका टर्म आता है अल्फा डी ग्लूकोज। डी क्या है ये भी हम ढंग से समझेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज। तो डी इज रिजेंबलिंग विद द ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड देख लीजिए क्या होगा, अगर ये OH दिस साइड एंड दिस इज CH2OH, ये है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आपका ग्लिसरैल्डिहाइड। देख लीजिए बेटा क्या है ये, दिस इज ग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है। तो ग्लिसरैल्डिहाइड में ये आपका यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन, द लास्ट कायरल कार्बन, दिस इज पोसेसिंग द OH ग्रुप राइट हैंड साइड। तो अगर ये राइट हैंड साइड है तो हम इसे कहेंगे दिस इज D, this is actually resembling with D part, मतलब D glucose, this is resembling with glyceraldehyde like this, तो इसे हम कहेंगे D, ये रिजेंबल कर रहा है तो इसे हम कहेंगे D। तो D पार्ट जो आपका यहाँ पर ये जो पार्ट होगा, ये राइट हैंड साइड में हमने अगर कायरल कार्बन को यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4, ये फोर्थ वाला मतलब आपका जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में अभी आप समझ लीजिए। अब सारे फॉर्मूलाज अच्छे से देखिएगा, बहुत ढंग से समझिएगा इस पार्ट को। ये जो पार्ट है आपका, ये दिस इज OH एंड देन दिस इज H, दिस O, ये आपका C, दिस इज CH2OH, देन हियर यू आर हैविंग दिस, देन OH, फोर्थ, दिस इज थर्ड में आपका OH यहाँ, सेकेंड जिसमें यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा हो गया, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये इस तरह से। तो ये आपका सेकेंड पार्ट, ये OH दिस साइड H, ये आपका OH यहाँ देख लीजिए बहुत अच्छे से। ये फोर्थ, ये वाला जो पार्ट है ये और ये यहाँ पे देख लीजिए राइट हैंड साइड में, मतलब फोर्थ वाला जो कायरल कार्बन है आपका, लास्ट वाला कायरल कार्बन, बिकॉज इट इज रिजेंबलिंग विद दिस ग्लिसरैल्डिहाइड। तो ग्लिसरैल्डिहाइड के भी आपके दो पार्ट, जिसको कि हम कहेंगे ये पार्ट है आपका, ये फॉर्म है आपका D फॉर्म है, ये आपका D फॉर्म है जो कि ग्लूकोज, वी आर एक्चुअली गोइंग टू कॉल दिस एज ग्लूकोज। यहाँ पे देख लीजिए ये अल्फा वर्ड हम दे रहे हैं बिकॉज दिस
फर्स्ट कार्बोनिल कार्बन इज पोसेसिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में जो ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी वजह से इसको हम कहेंगे अल्फा। और क्योंकि ये देख लीजिए यहाँ पे ये राइट हैंड साइड में है कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसीलिए हम कहेंगे डी, डी ग्लूकोज। ओके, एंड ऑल्सो दिस इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी हमने पढ़ा है कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी, व्हेन द सब्सटेंस इज एक्चुअली रोटेटिंग द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो हम उसे कहेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ठीक है, द सब्सटेंस विल बी डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी के लिए हम स्मॉल डी का इस्तेमाल करेंगे, स्मॉल डी, या फिर हम पॉजिटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अगर हमने यहाँ लिखा है, देख लीजिए इस तरह से हम लिखेंगे अल्फा डी, पॉजिटिव को हम ब्रैकेट में लिख देंगे अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। ये पार्ट आपका एक फॉर्म, आई होप यू आर ऑल अंडरस्टूड। ये अल्फा डी प्लस, सबका मतलब समझ में आया। ये आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी बता रहा है कि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। डी आपको बता रहा है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड को रिजेंबल कर रहा है ये डी फॉर्म को, और अल्फा यानी ये राइट हैंड साइड में आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है फर्स्ट कार्बन में, इस तरह से। ठीक, चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब इसी का हावर्थ दैट फॉर्मूला, सो दैट हावर्थ फॉर्मूला भी रोट हियर, ये दोनों समझ में आ गया आपको। एक पूरा अच्छे से क्लियरली नोट डाउन कीजिए इसको, एंड लेट मी रब एंड देन आई विल मेक द अदर, लेट मी रब दिस। ये जो पार्ट है इसी को रब करके देख लीजिए, पूरा शुरू से बनाते हैं। देखिए अब यहाँ पर बीटा डी यहाँ पर आपका ये जो पार्ट है बीटा डी और पॉजिटिव ग्लूकोज। तो ये सबसे पहले तो आपका यहाँ पर बीटा है, तो ये पोजीशन इसका बदल जाएगा और ये यहाँ OH होगा, यहाँ पे H। ठीक है, फिर इस तरह से O, फिर यहाँ पर C, दिस इज CH2OH, और यहाँ से ये H, इस तरह से। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, इन दिस केस दिस इज यहाँ पे OH, ये H, दिस इज थर्ड कार्बन है तो यहाँ पे OH, फोर्थ कार्बन है तो यहाँ पे OH, दिस इज फिफ्थ कार्बन, एंड ये है आपका स्ट्रक्चर। तो ये बना यहाँ पर, ये बीटा और डी क्यों है, क्योंकि ये है आपका इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका बीटा डी पॉजिटिव डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ये ग्लूकोज। ओके, so this is एनोमर्स, आई wrote it like this। और ये अगर आप चाहें तो हावर्थ फॉर्मूला में इस तरह से बना लीजिए। ये पार्ट आपका हावर्थ फॉर्मूला में देख लीजिए, ऊपर आपका OH फर्स्ट वाले में यहाँ पर ऊपर OH लिखेंगे। ठीक है, ऊपर OH, और फिर सेकेंड वाले पार्ट में आपका नीचे OH होगा, यहाँ पर थर्ड वाले में ऊपर OH, फिर यहाँ पे नीचे, फिर यहाँ पे CH2OH, एंड दिस इज H। ठीक है, तो लिखे या ना लिखे एक ही बात है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हावर्थ फॉर्मूला एंड फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ग्लूकोज का जितने भी अलग अलग एनोमर्स और एपीमर, अच्छा एपीमर्स भी एक और वो रह गया है आपका। तो एपीमर्स में आपको मैंने बताया कि राइट हैंड साइड का फोर्थ वाला ये जो पार्ट है आपका, ये अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, ये अगर चेंज हो रहा है कायरल कार्बन में, ये अगर चेंज हो रहा है तो इसको हम कहेंगे एपीमर्स। ठीक है, मतलब कायरल कार्बन में अगर ओरिएंटेशन बदलता है तो हम उसे कहेंगे एपीमर। और अगर हमारा फर्स्ट कार्बोनिल कार्बन में ही पहला वाला जो है वो कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन से ही ये मिला है हमें, तो कार्बोनिल कार्बन में अगर बदलाव देख रहे हैं तो वो होगा हमारा एनोमर। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड। सो दिस वाज अबाउट ऑल दैट ग्लूकोज पार्ट वी completed। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज disaccharides, so that we will discuss about those sucrose, lactose and maltose in the next video, because this video also is very lengthy.
So I hope you understood very nicely what this glucose is and how the structure is. Glucose, the different ways of writing this alpha, beta, they are actually ennomers of each other. Okay, do remember ennomers. Why we are calling it ennomers? So that also we just now discussed. कार्बोनिल कार्बन में जो अंतर है, ओरिएंटेशन में जो बदलाव है, वो है इसका कारण. ठीक है, तो बस दिस वाज ऑल अबाउट दिस एनोमर्स, एपीमर्स. एपीमर्स यानी कि कायरल कार्बन में अगर बदलाव है ओरिएंटेशन में तो हम कहेंगे एपीमर्स. तो ये दोनों चीज़ें ये अच्छे से ये ध्यान से देख लीजिएगा. सो नेक्स्ट वीडियो में दैट नेक्स्ट पार्ट व्हेन वी विल सी, वी विल स्टार्ट विद डाइसैकेराइड्स, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, एंड ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ polysaccharides, okay, and then proteins and nucleic acids, that also we will see in the next videos. Okay, so thank you so much. I hope you understood nicely. So please watch the video completely. Okay, then you will understand each of that experiment and the reactions, why the structure of glucose, because it wasn't known to us. How we came to know about each step by step. When you will see this, you will understand completely. So thank you so much.